Biomolecules part 2 न्यूक्लिक एसिड P डबल बॉन्ड O OH OH O फिर एक सिंगल बॉन्ड जो कि अटैच है और ये जो सिंगल बॉन्ड बना रहा इधर फिर ये शुगर के साथ इधर नाइट्रोजनस बेस अटैच है फर्स्ट कार्बन पे और यहाँ पे फिफ्थ कार्बन से ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो ये जो बीच में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और ये दोनों से बॉन्ड बना रहा वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिलीज and then formation of a phosphoester bond okay कार्बन 1 पे फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस है और इन दोनों के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और इसे कहते हैं नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर जो है पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इन दोनों को से जो ये बना है इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड एंड देन ये न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होता देन इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड ओके। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तब बनता जब इधर नाइट्रोजनस बेस है फर्स्ट कार्बन पे थर्ड कार्बन पे जो PO4 है वो दूसरे से अटैच होता है वो दूसरे वाले के न्यूक्लियोसाइड के फिफ्थ कार्बन से अटैच होता है देन यहाँ पे 3-5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता 3-5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता ओके। Two nucleosides are linked to each other via phosphodiester bond. Two nucleotides are linked to each other via phosphodiester bond. Nitrogenous base nucleotide nitrogenous base adenine guanine cytosine thymine uracil नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन को कहते हैं एडेनिन को कहते हैं एडिनोसिन ग्वानिन को कहते हैं ग्वानोसिन साइटोसिन को कहते हैं साइटिडीन थाइमीन को कहते हैं थाइमिडीन यूरेसिल को कहते हैं यूरिडीन ओके। न्यूक्लियोसाइड था ये। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या कहते हैं एडिनाइलिक एसिड या फिर AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट फिर ग्वानिन इधर ग्वानोसिन और यहाँ पे ग्वेनाइलिक एसिड या फिर ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट GMP ओके। फिर साइटोसिन को साइटिडीन एंड इधर साइटिडाइलिक एसिड CMP साइटिडाइलिक एसिड थाइमीन T से डिनोट करते हैं और थाइमिडाइलिक एसिड और TMP यूरेसिल यूरिडीन और यूरिडाइलिक एसिड यूरिनोसिन मोनोफॉस्फेट ओके। DNA was first discovered by F. Misher 1869 in white blood cell. DNA was first discovered by F. Misher in 1869 in white blood cells. Misher ये क्या बताए थे an acidic substance inside nucleus nuclein later Altman called the nucleic acid जो कि DNA और RNA के बारे में फिर आगे चल के बताएं। चारगफ रूल Irving Chargaff proposed some rules regarding structure of DNA. Irving Chargaff proposed some rules regarding structure of DNA. First, amount of purine is equals to amount of pyrimidine. A plus G is equals to C plus T. Okay. A equal to T. Vice versa. T equal to A. G equal to C. And also C is equals to G. और यहाँ पे A जो है T से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटा रहता और G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहता ओके। Sugar and phosphate are present in equal proportion. Sugar and phosphate
Sugar and phosphate are present in equal proportion. Sugar and phosphate are present in equal proportion. Base ratio A plus T upon G plus C. A plus C upon G plus C. A plus T upon G plus C varies from one species to another but constant for particular species. Okay. RNA does not follow Chargaff rule. RNA is single stranded, lack of complementary. हाँ. Watson and Crick double helix structure of DNA bDNA. DNA is made up of two polynucleotide chain. DNA is made up of two polynucleotide chains which are anti-parallel to each other. जैसे 5 से 3 5 डैश से 3 डैश इधर है एंड देन सेकेंड वाला जो वो 3 डैश से 5 डैश. ओके. The two strands do not coiled upon itself. The two strands do not coiled upon itself, but the double helix coiled upon itself like a revolving staircase. The two strands do not coil upon itself, but a double helix coiled upon itself like a revolving. The two stranded do not coiled upon itself, but the double helix coil upon itself like a revolving stair whose bases forms step while backbone is forming railing. Whose bases form step, okay, and while backbone is forming railing. Sugar phosphate form backbone of helix. Sugar forms the backbone of helix. Okay. And bases are perpendicular to backbone but faces inside. Bases are perpendicular to backbone but faces inside. ये 30 डिग्री 36 डिग्री ये रोटेट है, घुमा हुआ है 36 डिग्री. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 नैनोमीटर है, मतलब 20 एंगस्ट्रम. ओके. दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो गैप है उसके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रम. 0.34 नैनोमीटर एंड 3.4 एंगस्ट्रम. ठीक है. पिच ऑफ हेलिक्स ये यहाँ से यहाँ तक है, एक राउंड तक है. ओके. The width of bDNA is 2 nanometer. A forms a double hydrogen bond with T, and G forms a triple hydrogen bond with C. The distance between two successive base pair is 0.34 nanometer. 0.34 nanometer. The pith of helix. Complete turn of helix 0.34 nanometer into 10 base pair equal to 3.4 nanometer. 3.4 nanometer. Types of DNA. aDNA 11 base pair per turn. cDNA 9 base pair per turn. dDNA 8 base pair per turn और zDNA में 12 बेस पेयर पर टर्न है. और bDNA, aDNA, bDNA, cDNA एंड dDNA ये चारों राइट हैंडेड हेलिक्स है, बट zDNA ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है. ओके. RNA राइबोस सुगर 2-OH ग्रुप uracil rRNA ribosomal RNA 80%
80% है। RNA राइबोसोमल RNA ये 80% है। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस ओके। सेकेंड mRNA मैसेंजर RNA 5% है ये। लिस्ट अबेंडेंट इट हैज़ अ मैसेज in the form of codon. It has a masses in the form of codon protein synthesis. ओके RNA हो गया राइबोसोमल RNA ये 80% है। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस। एंड देन सेकेंड mRNA मैसेंजर RNA 5% है ये। लिस्ट अबेंडेंट है। इट हैज़ अ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कोडोन ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता। फिर tRNA ट्रांसफ़र RNA 10 to 15% सबसे स्मॉलेस्ट RNA क्लोव लीफ 2D और इन्वर्टेड L ये 3D स्ट्रक्चर है। ओके इसे अडेप्टेड RNA भी कहते हैं। अडेप्टर RNA कैरी अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू प्रोटीन synthesis area, carry amino acid from cytoplasm to protein synthesis area. Okay, lipids acid insoluble pool में आता है retentate में जो था बचा हुआ वो। they are insoluble in water hydrophilic but soluble in organic solvent like benzene chloroform acetone etc. they are insoluble in water hydrophobic but soluble in organic solvent like benzene, chloroform, acetone, etc. They are colloidal in nature. And forms vesicles in water. They are colloidal in nature and forms vesicles in water, i.e. emulsion form करता। हाँ they are colloidal in nature and forms vesicles in water emulsion। CHO little amount में बटर घी वेजिटेबल ऑयल बीटा कैरोटीन विटामिन ए कैरोट में जो कि प्रेजेंट रहता है। फिर लाइकोपीन ये टोमेटो में प्रेजेंट है एटसेट्रा। दे आर colloidal in nature and form vesicles in water emulsion जिसे कहते हैं। ओके lipids can be fatty acid, glycerol or mixture of both। lipids can be fatty acid, glycerol or mixture of both। glycerol trihydroxypropane CH2OH glycerol। fatty acid unbranched chain of hydrocarbon with carboxylic acid at one end। unbranched chain of hydrocarbon fatty acid unbranched chain of hydrocarbon with carboxylic acid at one end are C double bond OH। और यहाँ पे जो ये R है 1 to 16 कार्बन एटम्स इसमें रहता, 1 to 19 कार्बन एटम्स रहता। Saturated fatty acid CnH2nO2 saturated fatty acid do not have double bonds। example palmitic acid इसमें 16 कार्बन है इंक्लूडिंग COH ग्रुप CH3 फिर CH2 ये 14 को है फिर COOH मतलब ये टोटल इधर का जो कार्बन हो गया 15 फिर COOH इधर 15 है तो इसलिए इसे कहते हैं पाल्मिटिक एसिड। ओके स्टेरिक एसिड 18 कार्बन का है तो इसे कहते हैं स्टेरिक एसिड। CH3 CH2 होल 16 COH CH3 CH2 होल 16 COH। तो यहाँ पे ये 16 एक मिला के 17 हो गया स्टेरिक एसिड और फिर उसके बाद COH। unsaturated fatty acid having double bonds fatty acid
एग्जाम्पल इसका देखते हैं। ऑयलिक एसिड, ऑयलिक एसिड इसे मूफा कहते हैं, मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बस एक ही डबल बॉन्ड है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ऑयलिक एसिड, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 18, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 18 और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1। फिर लाइनोइक एसिड, लिनोइक एसिड, नंबर ऑफ कार्बन 18 और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2। लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 18 है और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3। ओके। एराकिडोनिक एसिड, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 20। एराकिडोनिक एसिड, number of total number of carbon 20, number of double bond 4. Okay, arachidonic acid, number of carbon 20, number of total number of carbon 20, number of double bond 4. यहाँ पे 18 और एक ये रहा 20, 18 20। एराकिडोनिक एसिड में यहाँ पे 20 है और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 4, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे 18 20। यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन देख रहे हैं यहाँ पे इंक्लूडिंग COH ग्रुप है, इंक्लूडिंग COH ग्रुप। ओके, अब देखते हैं essential fatty acid, plants can synthesize all fatty acid but animals cannot, i.e. required through diet. Example, linoleic acid, linoleic acid और linolenic acid और arachidonic acid. ओके, मूफा, इसका एग्जाम्पल है ओलिव ऑयल, पीनट ऑयल। ये मूफा था, हाँ। अब देखते हैं फूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जिंजेली ऑयल, सीसम ऑयल, जिंजेली ऑयल, हाँ। सनफ्लावर ऑयल, सेफ्लावर ऑयल, फिश ऑयल में हो जाता है मैकेरल, ट्यूना और सैल्मन। ओके, लिपिड 3 टाइप्स का है, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड का एग्जांपल ट्राइग्लिसराइड, फैट और ऑयल्स, ठीक है। दूसरा वैक्सेस। कंपाउंड लिपिड का एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, क्रोमोलिपिड, लिपोप्रोटीन। फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, क्रोमोलिपिड, लिपोप्रोटीन। ओके, डिराइव लिपिड, एग्जाम्पल स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल। सिंपल लिपिड क्या है ये? एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल। फर्स्ट हो गया ट्राइग्लिसराइड, अल्कोहल, तो यहाँ पे ये ग्लिसरॉल बनाते हैं, तो यहाँ पे ये ग्लिसरॉल है, CH2OH, ये ग्लिसरॉल हो गया। ओके, फिर फैटी एसिड जो बगल में है, R1COOH, R2COOH, R3COOH, ये 3 फैटी एसिड है। ये इससे रिएक्ट किया, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज हुआ एंड देन यहाँ पे एस्टर बॉन्ड फॉर्म हुआ। अब बन गया ये ट्राइग्लिसराइड बन गया। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी इसे कहते हैं क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है इसलिए। R1COCH2, R2COCH2, R3COCH2। ट्राइग्लिसराइड, फैट्स हो गया एनिमल्स, एनिमल्स में फैट्स, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेड अप ऑफ मोस्टली सैचुरेटेड फैटी एसिड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, एग्जाम्पल बटर, घी। फैट क्या है? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर,
सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, फैट सॉलिड एट रूम, हाँ ऐसे भी जो है ऑयल वो प्लांट से और एक्वेटिक एनिमल से मिलता है और फैट एनिमल से, और फैट जो है रूम टेम्परेचर पे ये तो सॉलिड ही रहता है। और मेड अप ऑफ मोस्टली सैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, हाई मेल्टिंग पॉइंट बटर घी। और फिर ऑयल का अगर देखें तो ये ऑयल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर मेड अप ऑफ मोस्टली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, लो मेल्टिंग पॉइंट जिंजेली ऑयल, सीसम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सेफ्लावर ऑयल, फिश ऑयल, सैल्मन, टूना, मैकेरल। ओके, सेकेंड है सिंपल एसिड में, ये फर्स्ट था ट्राइग्लिसराइड, और ये सिंपल लिक्विड ये बनता कैसे था, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल। ओके, अल्कोहल एक ही मॉलिक्यूल था याद रखना, और यहाँ पे 3 फैटी एसिड था। ठीक है, सेकेंड वैक्सेस, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्कोहल, एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्कोहल। जैसे यहाँ पे C15H31 COOH, ये पाल्मिटिक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड, C15H31 COOH, तो ये हो गया फैटी एसिड, और इधर हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्कोहल, यहाँ पे OH C30H61, इसे कहते हैं मिराइसल अल्कोहल, ट्राइकोनटेनॉल। ओके, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकला, एंड देन C15H31 COO C30H61, ये बना ट्राइकोनटेनाइल पाल्मिटेट बीजवैक्स। ओके, secreted by abdominal gland of workers bees, secreted by abdominal gland of workers bee, female sterile, compound lipids, ester of fatty acid with alcohol। अब compound lipid ये भी ester of fatty acid with alcohol प्लस नॉन लिपिड पार्ट, यहाँ पे क्या है, नॉन लिपिड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट है फॉस्फोलिपिड, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, एम्फी इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे दोनों है, हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी है। ऊपर हाइड्रोफिलिक हेड और फिर नीचे हाइड्रोफोबिक टेल। फिर इसके ऊपर यहाँ पे ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के ऊपर फॉस्फेट के ऊपर फिर अटैच है कोलिन, P डबल बॉन्ड O POH OH, फॉस्फेट है, कोलिन के ऊपर है, फॉस्फेट के ऊपर है कोलिन CHOLINE। तो ये पूरा हेड का पार्ट है, ग्लिसरॉल से फॉस्फेट से कोलिन। ओके, एग्जाम्पल लैसिथिन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, लैसिथिन ये सरफेक्टेंट प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई। यस, R2COCH, फिर से ऊपर एक अटैच है CHOCOR1, फिर इधर नीचे CH2, फिर यहाँ से एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकला, फिर ये फॉस्फेट के साथ जुटा, एंड देन ये O CH2 होल 2, फिर यहाँ पे N CH3। कोलिन का स्ट्रक्चर है OH CH2 होल 2, फिर यहाँ पे N पे प्लस है, और फिर ये 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड अटैच है CH3, फिर CH3। ये फॉस्फोलिपिड लैसिथिन। 2 एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट, 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट, 2 एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट और 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट। ओके, Sphingolipids, long chain amino acid containing alcohol, sphingosine, long chain amino acid containing alcohol, sphingosine plus fatty acid, ये क्या बना,
सिरामाइड एंड देन सिरामाइड प्लस फॉस्फेट प्लस कोलिन, ये बनाता है स्फिंगोमाइलिन एंड देन ये प्रेजेंट इन माइलिन शीथ स्पिंगोसिन प्लस फैटी एसिड, ये बना सिरामाइड प्लस फॉस्फेट प्लस कोलिन, ये बना स्फिंगोमाइलिन प्रेजेंट इन माइलिन शीथ। ओके, ग्लाइकोलिपिड्स सिरामाइड प्लस मोनोसैकेराइड सिरामाइड प्लस ग्लूकोज इससे बना ग्लूकोसैरिब्रोसाइड सिरामाइड प्लस ग्लैक्टोसैरिब्रोसाइड present in cell wall of brain। और फिर फोर्थ है क्रोमोलिपिड्स, क्रोमो में आप पिगमेंट हो गया। एग्जाम्पल बीटा कैरोटीन ये क्या है, प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। और फिर लाइकोपीन टोमेटो। ओके, फिफ्थ लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन। एग्जाम्पल काइलोमैक्रॉन, HDL, LDL etc. Derived lipids, steroid, cholesterol, C27H45OH, precursor of steroid hormone। Example testosterone, estrogen, progesterone, aldosterone, cortisol। ओके, ये क्या कोलेस्ट्रॉल का फिर इधर स्ट्रक्चर। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ये करता क्या है, स्टेबलाइज सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ बाइल साल्ट taurocholate, glycocolate, forms the vitamin D in skin in the presence of sunlight। सेल ये बायोमोलिक्यूल से मिलकर बना। मेटाबोलाइट, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर और मोल पर सेल में यहाँ पे बायोमोलिक्यूल, इसे मेटाबोलाइट कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर और मोल पर सेल। एग्जाम्पल ब्लड ग्लूकोज लेवल 4.2 मिलीमोल पर लीटर टू 6.1 मिलीमोल पर लीटर। हार्मोन्स नैनोग्राम पर मोल। फिर यहाँ पे ए से बी और बी से सी जा रहा, तो ए फूड है, फूड से यहाँ पे ग्लूकोज बना एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। ये टर्नओवर मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक पाथवे, ये लीनियर है ग्लाइकोलाइसिस वाला और सर्कुलर है क्रेब साइकिल वाला। एग्जाम्पल डाइसैकेराइड H2O की प्रेजेंस में ये टूटता है, मोनोसैकेराइड प्लस मोनोसैकेराइड बना। उसी तरह अमीनो एसिड के साथ यहाँ पे COOH ग्रुप हटा देन अमीन बना। मेटाबॉलिक रिएक्शन, कैटलाइज्ड रिएक्शन एंजाइम्स के प्रेजेंस में कैटलाइज्ड होता है। जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन और डिग्रेडेशन पाथवे है, जहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनता। एग्जाम्पल ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का है, इससे 2 इंटू लैक्टिक एसिड बना 3 कार्बन का प्लस एनर्जी रिलीज होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। ओके, दूसरा है एनाबॉलिक रिएक्शन और बायोसिंथेसिस पाथवे। सिंपल से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहा, जैसे एसिटिक एसिड ये 2 कार्बन का है प्लस एनर्जी के प्रेजेंस में ये कोलेस्ट्रॉल बना। यहाँ पे 27 कार्बन है। ओके, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ी। एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ए है, इससे बी 3 फॉस्फेट है यहाँ पे अल्फा बीटा का मतलब, जब 3 फॉस्फेट एडिनोसिन से अटैच तो इसे कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैकेनिकल वर्क इन मसल्स में काम आता। ऑस्मोटिक वर्क इन असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, जहाँ पे कि NaCl ये एक्टिवली बाहर किया जाता है। यस, बायोसिंथेसिस वर्क में काम आता। और फिर लिविंग स्टेट इज़ अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट,
इक्विलिब्रियम मतलब W नेट इक्वल्स टू 0, बट ये लिविंग है तो कुछ ना कुछ वर्क कर ही रहा है। अगर हाथ पैर से कोई काम नहीं भी कर रहा है तो भी इसकी एनर्जी खर्च हो रही है मेटाबॉलिज्म में। ये रेस्पिरेशन कर रहा, मेटाबॉलिज्म हो रहा। एनर्जी, दिस एनर्जी, they are biocatalyst, sorry, enzymes, they are biocatalyst. Enzymes are mostly proteins except ribosome or ribonuclease, ठीक है, except ribozymes or ribonuclease. RNA is acting as an enzyme. Enzymes are mostly protein except ribosome or ribonuclease. RNA is acting as an enzyme. Enzymes have their own 1 degree, 2 degree and 3 degree structure. Enzymes have their own 1 degree, 2 degree and 3 degree structure. Protein chain folded upon itself and chain crossover. Protein chain folded upon itself and chain crisscross with each other to form cervix or pocket. ये क्या है? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम बाइंडिंग इनटू विच सबस्ट्रेट फिट। तो ये एंजाइम ये इसका एक्टिव साइट बना और एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट अच्छे से फिट हो जाता। ओके, एंजाइम्स ये बायोकैटलिस्ट कहा जाता है इसे। एंजाइम बायोकैटलिस्ट मोस्टली प्रोटीनेशियस एंड कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस। ओके, present in living organism, highly specific, highly efficient, not stable at high temperature and pressure, except tech DNA polymerase, stable at 80 to 90 degrees Celsius, extracted from Thermus aquaticus. Okay, inorganic catalyst, non-proteinaceous and simple. Not present. Example, nickel, platinum. Less specific, less efficient, stable at high temperature and pressure, stable or functional at high temperature and pressure. ठीक है, ये क्या इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बारे में था ये। ओके, हमारे में जो प्रेजेंट है एंजाइम्स उसे कहते हैं बायोकैटलिस्ट। केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन के फिजिकल चेंज हो रहा। Physical change in structure of compound without breaking of bond. Change in structure of compound without breaking of bonds. Change in state of matter. Physical change, change in structure of molecule without breaking of bonds. Okay, change in state of matter. Ice से water से water vapor बना, solid से liquid से gas. Chemical chains, breaking of bonds and formation of new bonds. Breaking of bonds and formation of new bonds. Breaking of bonds, chemical chains में क्या हो गया? Breaking of bonds and formation of new bonds. जैसे BaOH whole 2 plus H2SO4 से बना BaSO4 plus 2H2O. Okay, rate of reaction, delta P upon delta T. Rate of reactant is amount of product formed per unit time. Rate of reactant is amount of product formed per unit time. Rate of reaction is amount of product formed per unit time. CO2 plus H2CO3 कार्बोनिक एसिड। हाँ, तो ये तो होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ रिएक्शन इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। यस, इन अब्सेंस ऑफ एंजाइम 200 मोल पर आवर। सॉरी, ये मोल नहीं है, मॉलिक्यूल है। इन अब्सेंस ऑफ एंजाइम जैसे 200 मॉलिक्यूल पर आवर बन रहा, वैसे ही इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम CO2 प्लस H2O, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस जैसे ही आता है, देन H2CO3 बनता, तो ये 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। बाप रे, 10 बिलियन टाइम्स बढ़ गया एंजाइम की प्रेजेंस में। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, स्पेसिफिक डायरेक्शन
वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ जाता, इंक्रीज हो जाता, इसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में करवाता, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता. हाउ एंजाइम्स इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ एंजाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन. एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिला, एंजाइम जो ये अपना एक्टिव साइट फॉर्म कैसे सबस्ट्रेट मिला, देन ये ES कॉम्प्लेक्स बना एंड देन EP ये प्रोडक्ट बनाया, फिर एंजाइम अलग हो गया. फ्री एंजाइम्स कैन बी रीयूज्ड. Okay, enzyme increase rate of reaction by decreasing activation energy for the of the reaction. हाँ, पोटेंशियल एनर्जी और इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, और ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है. सबस्ट्रेट ऊपर है, बाद में जो ये प्रोडक्ट बना ये नीचे, और प्लस एनर्जी रिलीज हो रही. ओके, ये जैसे ही ऊपर जाता तो बनता ट्रांजिशन स्टेट, जिसे ट्रांसिएंट एंड अनस्टेबल कहते हैं. इसके क्यों अनस्टेबल कहते हैं, क्योंकि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है. और जो ये ज़्यादा ऊपर बना है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम ये ज़्यादा ऊपर है, और ये बस थोड़ा सा जो ऊपर गया फिर नीचे आ गया, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम काफ़ी कम है. ओके, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और इधर पोटेंशियल एनर्जी, ये एंडोथर्मिक का. यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है इसकी एनर्जी काफ़ी कम है एंड देन प्रोडक्ट की ज़्यादा है. तो EP माइनस ES होता, तो फाइनल माइनस ये प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस सबस्ट्रेट की एनर्जी, तो ये पॉजिटिव में आया. ये एंडोथर्मिक है, ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम जो ज़्यादा ऊपर है, और जो नीचे है एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम्स. ओके, एंजाइम्स 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ, सिंपल एंजाइम्स और दूसरा कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स. सिंपल एंजाइम्स मेड अप ऑफ प्रोटीन, एग्जाम्पल ट्रिप्सिन. सिंपल एंजाइम्स मेड अप ऑफ प्रोटीन, एग्जाम्पल ट्रिप्सिन. और कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स जिसे होलो एंजाइम भी कहते हैं, ये 2 टाइप्स का हो गया, एपो एंजाइम और को फैक्टर. एपो एंजाइम और को फैक्टर. एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, और को फैक्टर जो है ये नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम है. मेक्स एंजाइम एक्टिव फॉर देयर कैटालाइसिस, मेक्स एंजाइम एक्टिव फॉर देयर कैटालाइसिस. नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, को फैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम मेक्स एंजाइम एक्टिव फॉर देयर कैटलिस्ट. ओके, को फैक्टर ये 2 टाइप्स का होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक भी आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड होता, प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम. प्रोस्थेटिक ग्रुप इट बाइंड्स टाइटली टू द एपो एंजाइम, इट बाइंड्स टाइटली टू द एपो एंजाइम्स पार्ट ऑफ होलो एंजाइम. इट बाइंड्स टाइटली, ठीक है, इट बाइंड्स टाइटली टू द एपो एंजाइम. एपो एंजाइम क्या था, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम जो है, ठीक है, उसके साथ ये बाइंड किया पार्ट ऑफ होलोजाइम. हाँ, और ये क्या है, होलोजाइम है. एग्जाम्पल, हीम इन पेरोक्साइड एंड कैटलाइज. हीम इन पेरोक्साइड एंड कैटलाइज, H2O2 से H2O प्लस O2 बना. कोएंजाइम ये वाइटामिन्स, कोएंजाइम्स क्या, ये मेनली वाइटामिन्स रहता. कोएंजाइम अच्छा, वो को फैक्टर था, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम. हाँ, और को फैक्टर है वो. और को फैक्टर का दूसरा काम क्या था, मेक्स एंजाइम एक्टिव फॉर देयर कैटलिसिस. ओके, और को एंजाइम क्या है, वाइटामिन्स. को एंजाइम क्या है, वाइटामिन. They bind to apoenzyme tightly only during the course of catalysis. अच्छा, coenzyme vitamins, they bind to apoenzyme tightly only during the course of catalysis. Vitamin B complex and vitamin C. जैसे विटामिन B1 थायमीन से बना यहाँ पे TPP इन क्रेब साइकिल लिंक रिएक्शन. फिर उसके बाद विटामिन B2 राइबोफ्लेविन से यहाँ पे FMN और FADH2. विटामिन B3 नाइसिन से NADPH और NADH और NAD+. ओके,
इनऑर्गेनिक, यहाँ पे मेटल आयन है, इनऑर्गेनिक मेटल आयन है. सम एंजाइम्स रिक्वायर्स मेटल आयन फॉर देयर कैटलिसिस. metal ions, some enzymes require metal ion for their catalysis. Some enzymes require metal ions for their catalysis. Example, Zn2 plus carboxypeptidase or carbonic anhydrase, alcohol dehydrogenase Mg2 plus kinase में Cl minus salivary amylase, Ca2 plus lipase, amodianitrogenase, Cu2 plus cytochrome oxidase, Fe2 plus cytochrome oxidase और peroxidase और catalase. ओके, मेटल आयन क्या काम किया? सम एंजाइम्स रिक्वायर मेटल आयन फॉर देयर कैटलिसिस. Classification and nomenclature of enzymes. IUB, International Union of Biochemistry, appoint EC, Enzyme Commission, EC 1.1.1.1. ये सबसे पहला वाला जो ये क्लास को डिनोट कर रहा और टोटल क्लास 6 है. सेकेंड वाला ये सब क्लास को डिनोट कर रहा, थर्ड वाला सब क्लास को डिनोट कर रहा और फोर्थ वाला इंडिविजुअल एंजाइम्स को डिनोट कर रहा. ओके, EC 1 2 3 4, 1 क्लास, 2 सब क्लास, 3 सब क्लास, 4 इंडिविजुअल एंजाइम. ठीक है. 1 फर्स्ट क्लास ये क्या है? ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेज. ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेजेस. ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेजेस. Enzymes which catalyze oxido reduction between two substrate S and S dash. Enzymes which catalyze oxido reduction between two substrate S and S dash. S reduced plus S dash oxidized, या S oxidized plus S dash reduced. Redox reaction or oxido reduction. Redox reaction or oxido reduction. Example, oxidase and reductase. Example, oxidase and or reductase. Dehydrogenase, oxidase, reductase, dehydrogenase, peroxidase, catalase. Redox reaction or oxido reduction. Example, oxidase, reductase, dehydrogenase, peroxidase, catalase. Alcohol plus NAD, alcohol dehydrogenase के प्रेजेंस में एल्डिहाइड प्लस NADH2 बनाया. अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में एल्डिहाइड प्लस NADH2. रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडो रिडक्शन. ठीक है. सेकेंड क्लास transferase. Enzyme catalyzes a transfer of group G other than hydrogen between a pair of substrate S and S dash. जैसे S G से अटैच है प्लस S dash and then form S plus S dash G बन गया या ट्रांसफरेज. ओके, और ऑक्सीडो रिडक्टेज में क्या था? एक का ऑक्सीडेशन हो रहा था और दूसरे का रिडक्शन. हाँ, जो पहले S जो रिड्यूस था वो बाद में S ऑक्सीडाइज में, और जो S डैश ऑक्सीडाइज था वो S डैश रिड्यूस बन गया. यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा, ऑक्सीडो रिडक्शन. ओके, ठीक है. एग्जांपल इसका ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, डिहाइड्रोजिनेज, पेरोक्सीडेज, कैटलेज. ओके, हाँ, और इसका क्लास है ट्रांसफेरेज. इसका
transaminase transfer of amine group. Kinase means okay, transfer of PO4 minus group from ATP to substrate. Example glucose plus ATP पे हेक्सोकाइनेज है, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना प्लस ADP बना. ओके. क्लास 3 ये हाइड्रोलेज है. हाइड्रोलेज एंजाइम कैटालिसिस हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक सी हैलाइड और PN बॉन्ड. एंजाइम कैटालिसिस hydrolysis of ester, ether, peptide, glycosidic, C halide or PN bonds. Example digestive enzyme sucrose plus H2O invertase. यहाँ पे फिर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बना. सुक्रोज प्लस H2O इन्वर्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बना. फिर यहाँ पे क्लास 4 लाइज मीन्स लाइसिस. एग्जाम्पल एल्डोलेज कार्बोनिक एनहाइड्रेज decarboxylase. Enzyme that catalyzed removal of group from substrate by mechanism other than hydrolysis. Living double bond. Example fructose 1,6 bis phosphate aldose डाले and then बना glyceraldehyde 3 phosphate plus dihydroxy acetone phosphate. 6 कार्बन का फिर यहाँ बाद में 3 कार्बन और 3 कार्बन का बन गया. ओके. क्लास 5 isomerase includes all enzymes catalyzing interconversion of optical, geometric and positional isomers. Isomerase includes all enzymes catalyzing interconversion of optical, geometric or positional isomers. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेरेज के प्रेजेंस में ये बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. क्लास 6 लाइगेशन और लिंकिंग enzymes catalyzing the linking together of two compounds. Example enzymes which catalyze joining of CO, CS, CN, PO etc. bond. Example PEP phosphoenol pyruvate जो कि 3 कार्बन का है प्लस CO2 ये फॉस्फोइनॉल पायरवेट कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में प्लस ATP के साथ ये बनाता OA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का. ओके. अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी. फर्स्ट टेम्परेचर. एंजाइम रिक्वायर ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर देयर मैक्सिमम एक्टिविटी. इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू डिक्रीज इन एंजाइम एक्टिविटी. लो टेम्परेचर पे इनएक्टिवेट द एंजाइम्स और प्रिजर्व किया ये, ठीक है, क्योंकि इनएक्टिव कर दिया. बट हाई टेम्परेचर पे डिनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ 3 डिग्री स्ट्रक्चर, लॉस ऑफ कैटालिसिस. ठीक है. वाई एक्सिस पे यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस. ऑप्टिमम टेम्परेचर ये जहाँ पे पिक पे है उसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर. ये बेल शेप कर्व बना. ठीक है. चाहे आगे जाएं चाहे पीछे जाएं ये दोनों साइड हाफ हो जाता क्योंकि अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही मैक्सिमम वर्क करता 37 डिग्री सेल्सियस पे. ओके. एट 100 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इन आइदर डायरेक्शन लीड्स टू डबल और हाफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन. अच्छा, ये जब पीछे की तरफ आ रहे हैं तो ये हाफ हो गया और जब इसकी ओर जा रहे हैं तो डबल.
जब भी रिएक्शन ऑप्टिमम के पास आएगा तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, और जब इससे दूर जाएगा देन हाफ हो जाएगा. ओके. pH. enzyme require optimum pH for their maximum activity. Decrease or increase in pH leads to decrease in enzymatic activity. Example salivary amylase pH 6.8, pepsin pH 1.8, trypsin pH 7.8. एंजाइम एक्टिविटी वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे पीएच है, तो जहाँ पे ये भी बेल शेप ग्राफ बन रहा, बेल शेप कर्व बना, और पिक पे जो है वो है ऑप्टिमम पीएच. ओके. सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन leads to increase in enzymatic activity. Increase in substrate concentration leads to increase in enzymatic activity. Increase velocity of the reaction. Ultimately it reaches maximum velocity, i.e. there will be no more increase in velocity of reaction. Increase in substrate reaction leads to increase in enzymatic activity. Increase velocity of the reaction. Ultimately it reaches maximum velocity, i.e. there will be no more increase in velocity of reaction. एक सेकेंड, ये जब ये मैक्सिमम पे आ जाता है, इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लेट्स टू इंक्रीज इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी. ओके. इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, अल्टीमेटली इट रीचेस द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच करने के बाद देयर विल बी नो मोर इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एज ऑल द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम आर फिल्ड बाय सबस्ट्रेट. हाँ, इसलिए अब उसके पास और स्पेस ही नहीं है, तो इसलिए अब उसके बाद स्पीड इंक्रीज ही नहीं होता जब मैक्सिमम वो अचीव कर लेता है. मिचेलिस मेंटन इक्वेशन v इक्वल्स टू वी मैक्स एस का अपॉन के एम प्लस एस. ये v मैक्सिमम जो यहाँ ऊपर में कर्व आगे जाके फिर आगे से कांस्टेंट हो गया. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बना. v मैक्सिमम अपॉन 2 है, वहाँ पे उसे कहते हैं के एम मिचेलिस कांस्टेंट. ओके. Km क्या है? Km substrate concentration at which rate of reaction attains half of its maximum velocity. Substrate concentration at which rate of reaction attains maximum of its maximum velocity. Substrate concentration at which rate of reaction attain half of its maximum velocity. Okay. Which enzyme is more efficient? Enzyme X और enzyme Y. देखते हैं. X वाला ये पहले चला जा रहा और Y वाला. X का जो है Km कम है, तो ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कम कॉन्सेंट्रेशन में ही ये अपना मैक्सिमम अचीव कर पा रहा. हाँ, V मैक्स जल्दी आ जाएगा. ओके, इसलिए एंजाइम मैक्स ज़्यादा बढ़िया है. एंजाइम इनिबिटर I से डिनोट कर रहे हैं इसे. एनी सब्सटेंस दैट डिमिनिश्ड enzymatic activity is known as inhibitor. Competitive inhibitor reversible है. competitive inhibitor ये reversible है. In this, inhibitor and substrate compete for active site of an enzyme. Competitive inhibitor, इसके नाम में ही देखो लिखा है competition कर रहा. competitive inhibitor ये reversible है. Okay. In this, inhibitor and substrate compete for active site of an enzyme. Inhibitor I से denote कर रहे हैं. Okay. Inhibitor has similar structure like substrate. Inhibitor has similar structure like substrate. Example, inhibition of succinic dehydrogenase by malonate. Inhibition of succinic dehydrogenase जो ये एंजाइम है बाय मेलोनेट क्या है? इनहिबिटर. ठीक है, ये सक्सेनिक है. CO माइनस CH2 CO माइनस. यहाँ मेलोनेट है CO माइनस CH2 और CO. अच्छा, यहाँ पे एक CO2 कम है सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में. और
एसीटेट ये इनहिबिटर है, मेलोनेट और ऑक्जेलो एसीटेट ये भी इनहिबिटर है, CO माइनस, C डबल बॉन्ड O CH2 CO माइनस, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, यहाँ पे Vmax और इधर ये यहाँ पे Km कम हो जाता, Km डैश ये ज़्यादा है Km से, क्योंकि इसे भी compete करना विथ I, जब I इनहिबिटर के प्रेजेंस में इसका Km पहले आ जाता, और फिर जब विथ आई इनहिबिटर के प्रेजेंस में इसका Km लेट से आता, क्योंकि सबके बीच में कंपटीशन है, ये लेट से आया, ज़्यादा सबस्ट्रेट देना पड़ा, हाँ सबस्ट्रेट ज़्यादा देना पड़ा, क्योंकि कुछ जो है इनहिबिटर है वो इससे कम्पीट कर रहा है, इससे सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ा दिए। यहाँ पे विथ आई इनहिबिटर के प्रेजेंस में ये आगे शिफ्ट हो गया, और Vmax सेम ही है, Km इंक्रीज़ हो गया। ओके ये एक्टिव साइट है, यहाँ पे ये सबस्ट्रेट रहा और इनहिबिटर। एग्जांपल, यूज़ ऑफ इथेनॉल फॉर इनहिबिटिंग एक्टिविटी ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इन मिथेनॉल पॉइजनिंग। यूज़ ऑफ इथेनॉल फॉर इनहिबिटिंग एक्टिविटी ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इन मिथेनॉल पॉइजनिंग। अल्कोहल यहाँ पे मिथेनॉल है, ये AD की प्रेजेंस में एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड पॉइजन जो कि काउज करता, बाइंड विथ AD एक्ट एज इनहिबिटर, इथेनॉल एक्ट एज इनहिबिटर। यहाँ पे यूज़ ऑफ इथेनॉल का इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है। यूज़ ऑफ इथेनॉल फॉर इनहिबिटिंग एक्टिविटी ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इन मिथेनॉल पॉइजनिंग। और दूसरा एग्जांपल है यूज़ ऑफ सल्फर ड्रग्स इन केस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। Every organism need folic acid for their growth and development. Bacteria synthesis folic acid from PABA, मतलब P अमीनो बेंजोइक एसिड, ये सबस्ट्रेट है, हाँ। और यहाँ पे सल्फर ड्रग्स जो डाले, ये सल्फानिलामाइड ये इनहिबिटर। ओके नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो compete नहीं कर रहा उससे, तो ये क्या कर रहा, I binds to the site other than active site of enzyme, ये कहीं दूसरे जगह बाइंड करता। I binds the site other than active site of enzyme, हाँ यहाँ पे ये एक्टिव साइट है, बट इनहिबिटर इधर बाइंड किया और एंजाइम को ये मॉडिफाई कर दिया। साइनाइड पॉइजनिंग इन केस ऑफ इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइनाइड पॉइजनिंग इन केस ऑफ इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये यहाँ पे इसके शेप को चेंज कर दिया, तब तो बाइंडिंग हो ही नहीं पाएगी। DIFP डाइआइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट नर्व गैस इनहिबिट एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। यहाँ पे Km तो सेम है, बट Vmax ये डिक्रीज़ हो गया। इन अब्सेंस ऑफ एंजाइम ये ऊपर था, और इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नहीं इनहिबिटर, इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर ये, इन अब्सेंस ऑफ इनहिबिटर जब नहीं था तो ये ऊपर था, और इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर ये Vmax कम हो गया, इसकी स्पीडिंग कम हो गई, क्योंकि इसको अब एंजाइम किसी काम का ही नहीं बचा, ये जाके इस पर बाइंड कर गया और इसके शेप को ही चेंज कर दिया, तो अब एंजाइम किसी काम का ही नहीं रहा। ये इसके Vmax को डिक्रीज़ करता। Km यहाँ पे सेम ही रहता, और वहाँ पे क्या था, compete करता था, तो सबस्ट्रेट हम ज़्यादा डाल देते थे तो वो काम हो जाता, तो मतलब Vmax तो उतना ही ना, बस सबस्ट्रेट ज़्यादा डालना पड़ा, तो मतलब वहाँ पे Km इंक्रीज़ कर जाता था। बट यहाँ पे उसके शेप को ही चेंज कर दिया, अब एंजाइम ही नहीं है, तो उसका वेलोसिटी Vmax इंक्रीज़ हो गया। ओके लास्ट एलोस्टेरिक एंजाइम फीडबैक इनहिबिशन। यहाँ पे मॉड्यूलेटर साइट है एलोस्टेरिक में, और इधर नीचे एक्टिव साइट है, और ये सबस्ट्रेट रहा।
ये दो तरह से होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव, दोनों तरह। पहले पॉजिटिव देखते हैं। ये एक्टिवेटर आया, ये पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है, और एक्टिवेटर ये यहाँ जैसे ही बाइंड किया, मॉड्यूलेटर साइट जो था एलोस्टेरिक, इससे बाइंड, एक्टिवेटर इससे बाइंड किया, एंड इट प्रमोट्स इफेक्टिव कैटालिसिस, इट प्रमोट्स इफेक्टिव कैटालिसिस। और यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड कर गया, क्योंकि पहले एक्टिव साइट थोड़ा डिस्टर्ब था, जैसे ही एक्टिवेटर इससे बाइंड किया, इट प्रमोट्स इफेक्टिव कैटालिसिस। ओके, और नेगेटिव मॉड्यूलेटर क्या होता है? नेगेटिव मॉड्यूलेटर ये इनहिबिटर का काम करता है। इनहिबिटर आया, इससे बाइंड किया और इसके शेप को और ज़्यादा चेंज कर दिया। नो इफेक्टिव कैटालिसिस, अब इफेक्टिव कैटालिसिस नहीं होने दिया। आई प्रोडक्ट, और यहाँ पे ऊपर वाले में क्या हुआ था, पॉजिटिव वाले में, एंजाइम्स ऑफ चेन रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी रेगुलेटेड इंटरनली। आई प्रोडक्ट ऑफ सेम और अनदर एंजाइम्स कैन बी मॉड्यूलेटर फॉर द एंजाइम्स। हाँ, यस। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज, और यहाँ पे एटीपीएस, हेक्सोकाइनेस में ये एडीपी, और यहाँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब जिस अमाउंट में चाहिए होता उतना बन जाता, तो ये नेगेटिव फीडबैक शो करता है हेक्सोकाइनेस के प्रति। दूसरा एग्जांपल, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस के प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना। पॉजिटिव मॉड्यूलेटर एटीपी एडीपी, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर एडीपी, इसकी इनकी प्रेजेंस में ये फॉरवर्ड जाता, और नेगेटिव मॉड्यूलेटर एटीपी की प्रेजेंस में ये, जब एटीपी नहीं है तो ये नेगेटिव फीडबैक दिखाता और ये आगे रिएक्शन नहीं जाने देता। ओके, बाय, जय हिंद।